everyone, I am Anukriti Chauhan and I welcome you all on this platform of Samyak where we are going to have a very special class. And this special class particularly will be having the most important topics which are important with respect to your examinations, right? So any of the topics that you consider are really important and we haven't covered up in this series which we have started for you all, then you can just mention those topics down in the comment section of any of these classes and we will be trying to cover those topics up very soon. So yes guys, welcome to this particular class which we will be having on Samyak's platform, as this class has very important topics in detail. So I hope this class will be really helpful for each and every one of you. And guys, trust me or not, this class has some sentiments in it. ठीक है, नॉर्मल क्लासेस होती हैं, टॉपिक्स होते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इस पर्टिकुलर क्लास में जो है आपके कुछ सेंटिमेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं. तो एक रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि आप इस क्लास को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिएगा. एटलीस्ट राजस्थान के हर उस इंसान तक तो ये क्लास पहुंचनी चाहिए जो महाराणा प्रताप की लेगेसी को throughout their life appreciate करते हैं. So this class is associated with the provisions and with the lifestyle, with the life of Maharana Pratap and his legacy till today that we have in our lives. So we will be having this session for today and that's today's topic. But before we start guys, it's my humble request to each and every one of you that please subscribe to Samyak Civil Services and Samyak Civil Services in English YouTube channels, as they will be helping you all in achieving and covering up your tasks and chapters associated with you which you have now in the follow-up sessions, right? Yeah. So Maharana Pratap guys, Maharana Pratap, his reign started from 1572 and he reigned till 1597 AD, which is a very great time period for a ruler to reign, and a ruler like Maharana Pratap, whose incidences, whose we would say that everything that he has done for this particular region, or I would say for the glorifying history of Rajasthan, for the glorifying history of India, is commendable. Like we commemorate that thing each and every day, on his birth anniversary, on his death anniversary, and daily even when we are having a conversation, और वो जो आपके कहते हैं चाय पे चर्चा, तो उसमें महाराणा प्रताप का नाम एक बार तो आता ही आता है, राइट? तो अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की, तो 1572 से इन्होंने अपना टाइम पीरियड स्टार्ट किया, 1597 तक इन्होंने अपना रेन पीरियड जो था वो कवर किया, which was a very important period for you all to note down, right? Whenever we talk about this particular person in detail, he has a very strategic and a very important things, right? First, we will understand his personal life. सबसे पहले हम क्या समझेंगे, इनकी पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे. किस पे ध्यान देंगे? पर्सनल लाइफ पे. गाइस, पर्सनल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि ये आपको बताती है कि इंसान का अस्तित्व कहाँ से शुरू हुआ, उनकी जो पहचान है वो हमें कहाँ से देखने को मिलती है, उनकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो हमें, उनके इंस्टेंसेस कौन से हैं जो हमें बताते हैं कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट हिज फादर, सो ये उदयपुर का नाम कितने लोगों ने सुना है? ये वही वाले उदय सिंह हैं जिन्होंने उदयपुर को बचाया था, बसाया था, राइट? So this Uday Singh, the father of Maharana Pratap, established the provinces associated with the Udaipur. जैसे हम देखते हैं जोधपुर बाय राव जोधा, बीकानेर बाय राव बीका, so उदयपुर बाय उदय सिंह जी. अंडरस्टूड है? कंफ्यूजन तो होना ही नहीं है. So this Udaipur province was established by his father Uday Singh ji. His mother was Jayawanta Bai ji. This is also a very important fact which you need to keep in mind, right? Wife was Ajabde Pawar. His nickname was Kika and his son was Amar Singh. So who took his hire, मतलब हम कह सकते हैं ना वो hierarchical order क्या होता है, तो that was Uday Singh. After Uday Singh, Pratap, Maharana Pratap, then after Pratap it was Amar Singh, right? These three are very important rulers in a systematic manner.
उदय सिंह का रेफरेंसेस आप सब जानते हैं, आपके मतलब उदयपुर के एस्टैब्लिशमेंट से, प्लस इनके कुछ जो डिस्कशंस हैं, बायलैटरल टॉक्स, कॉन्वर्जेशंस हैं, कुछ आपका मतलब ऐसा नहीं है कि इनका कोई स्पेसिफिक बैटल है जो हम याद कर सकते हैं, बट इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर वो हम हमेशा याद रखेंगे, राइट। इनके जो भी आपके डेवलपमेंट्स थे, उदय सागर इन्होंने बनवाया, गिरवा हिल्स के आसपास जितने आपके डेवलपमेंट्स, वो सब इन्हीं से कंसर्न है, राइट। इनके बाद में जो हम देखेंगे वो काफी सारी इनकी चीजें कि धीरे धीरे कौन आपका लेगेसी में आते हैं, वो चीजें हम आप देखेंगे, ठीक है। सो उदय सिंह के रेफरेंसेस में ज्यादा नहीं, इस बार प्रताप की ही कहानी हम सुनेंगे। राइट आफ्टर द डेथ ऑफ उदय सिंह, द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ प्रताप टुक प्लेस। What did happen? What happened, guys? Right after the death of when we talk about उदय सिंह जी की जब डेथ हो जाती है तो प्रताप का कोरोनेशन होता है। And when there was the coronation ceremony associated with the Maharana Pratap, then a lot of rulers from various provinces tried to have this particular attendance of them in this function. So coronation हुआ, पहले तो सबसे पहले उनके फादर की जस्ट डेथ के बाद इनका कोरोनेशन हो गया। वो कहते हैं ना, एक फॉर्मेलिटी जो थी वो पूरी हो गई सबसे पहले। दैट वाज द फर्स्ट कोरोनेशन दैट टुक प्लेस इन द गोगुंडा राइट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इन द प्रेजेंस ऑफ होम, कृष्णदास चुंडावत, जिन्होंने एंड तक अगर हम बात करें आपके पूरे बैटल्स जितने भी इन्होंने लड़े तब तक महाराणा प्रताप की जो है हेल्प करी, कमांडिंग करी, कमांडर रहे ये, तो वो सब चीजें आपकी हम देखेंगे कृष्णदास चुंडावत ने एक बहुत ही मेजर रोल आपका प्ले किया। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द सेकंड कोरोनेशन दैट टुक प्लेस इन द कुंभलगढ़ फोर्ट, सो ये कुंभलगढ़ में ही हुआ एंड एट दिस मोमेंट द चंद्रसेन ऑफ मारवाड़ वाज प्रेजेंट। Which Chandrasen we are talking about over here? The Chandrasen which was seen in the Marwar region. उन चंद्रसेन की जिनकी बात हम कब करते हैं, मारवाड़ में करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट में, ठीक है, उनकी बात हम यहाँ पे करेंगे। मोटा राजा उदय सिंह जी से पहले जो चंद्रसेन रूल करते हैं, जिन्होंने इजीली सरेंडर नहीं किया होता है मुगल्स से, उन्होंने क्या कहते हैं, हम पर्टिकुलरली कह सकते हैं कि हाँ डायरेक्ट रेफरेंस है, चंद्रसेन को कहा जाता है प्रताप ऑफ मारवाड़। तो अगर आप मेवाड़ का प्रताप पढ़ रहे हो तो ये भी याद रखना कि मारवाड़ का प्रताप जो कि चंद्रसेन है वो भी उस टाइम पे प्रेजेंट थे इन दिस पर्टिकुलर कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ इट। सो इज दिस मच क्लियर? बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं आज की क्लास में जो आपको याद करनी पड़ेंगी। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो बहुत मतलब डेप्थ में एसोसिएटेड हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, कुछ ऐसे टेल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपका थोड़ा इंटरेस्ट बना रहना क्लास में ज़रूरी है। So if you have interest in these particular topics, then this class will be really helpful. अभी तक जो याद करने की चीज़ है, that's the personal details of Maharana Pratap, which were associated with his father, mother, his wife, and his son, and his nickname, and the place which he was born into was the Kumbhalgarh, right? Clear है इतना? Yes, cool. So now when we take this class ahead, the second thing that comes into our mind and the picture is the coronation processes. What were the coronation processes of Maharana Pratap? What was the coronation involvement of Maharana Pratap, which we can easily like mention in the details, right? कि कौन-कौन सी coronation, लोगों का coronation एक ही बार होता है। Coronation is राज्याभिषेक, एक ही बार होता है। प्रताप के 2 बार हुए और दोनों बारों में जो जो प्रेजेंट रहे उनका डिटेल्स हमारे लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस आएंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ओके। यस, नाउ वी टेक दिस क्लास अहेड, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी लाइन व्हाई वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉट। बैटल हुआ, आप सबको पता है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। क्यों हुआ, कैसे हुआ, पर्सपेक्टिव क्या था, रीजंस क्या थे, वो सब जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट ओवर हियर नाउ, राइट। फर्स्ट थिंग कम्स द अकबर एंड प्रताप। नाउ व्हाट इज दिस अकबर एंड प्रताप थिंग, गाइस? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस अकबर एंड प्रताप थिंग? कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन? This is the storyline that why was Akbar favored in conquering the Mewar? Why didn't Mewar surrendered? Why was this subjugation thing that was taking place in Akbar's mind? And why was these 4 rulers four diplomats who were sent by Akbar to the court of Maharana Pratap for the subjugation? उन्हें प्रोवोक कर रहे थे ये डिप्लोमैट्स कि आप जो है सरेंडर कर दो मेवाड़ को हमारे पास में और हम इसका ध्यान रख लेंगे, ये हमारे मुगल एम्पेरर अकबर का ऑर्डर है। ये कौन थे? ये सब सब्जुगेटेड वाले थे जो अपने आप को सरेंडर कर चुके थे ऑलरेडी मुगल्स को। मेवाड़ भैया कैसे सरेंडर करे? मेवाड़ तो मेवाड़ है,
तभी तो हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ है ना, मेवाड़ मेवाड़ है तभी तो हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ पढ़ते हैं. So for that particularly, we will have these things in detail that Akbar wanted to rule the Mewar region and Pratap opposed that particular thing. For the subjugation and the delegation, for persuasion to surrender the Mewar. किस चीज के लिए? सरेंडर करने के लिए, सब्जुगेशन के लिए. डेलीगेशन फॉर द परसुएशन टू सरेंडर, ताकि वो हमें परसुएट कर सके कि हम सरेंडर करें. अकबर ने 4 डिप्लोमैट्स प्रताप के कोर्ट में भेज दिए. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है. Choose the correct sequence of the 4 diplomats that were sent in the court of Maharana Pratap by Akbar. So it started from none other than that of the Jalal Khan Khorchi. मैं हमेशा बताती हूं इनका नाम याद रखना, जल कर याद रखना. क्या किया? अपने मान सम्मान के लिए भागवत धारण की और हर तोड़ उन्होंने निकाला. चलकर अपने मान सम्मान के लिए भागवत धारण की और उनका तोड़ निकाला, दुश्मनों का तोड़ निकाला. सो इट वाज जलाल खां खोरची, देन प्रिंस मान सिंह, देन भगवंत दास एंड इन द लास्ट तोड़रमल. तो ये सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट गाइस. देयर कैन बी क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस सीक्वेंस व्हिच यू आर पुटिंग अप, राइट? There will be questions based on these sequence which you are targeting right now. So please factual चीजें याद रखें. जो आपसे पूछा जा रहा है वो चीज आप याद रखिए. Right? Is this much clear? Do you have any doubts till here? Or is everything clear till here? मतलब सब कुछ अभी तक जो आपने पढ़ा क्या वो क्लियर है, या हमें अभी और डिटेल में जाना है? अभी डिटेल तो बहुत बाकी है. अभी तो मान सिंह जी के साथ में और भी लोग आएंगे तो वो भी समझने हैं. तो आमेर से जब मान सिंह जी आए तो अकेले थोड़ी आएंगे, कोई और रोल भी साथ में लेकर आएंगे. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट रोल टू. सो नाउ फॉर डिप्लोमैट्स दैट वर सेंट बाय अकबर टू द कोर्ट ऑफ महाराणा प्रताप. आर दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट इन पर्टिकुलर टू द आंसर क्लियर? Can you write it down without having it written on the screen that Jalal Khan Khorchi, Man Singh, Bhagwant Das and Todarmal was the correct sequence of the 4 diplomats that were sent by Akbar to the court of Maharana Pratap? Can you tell me that, guys? Can you write those things in the comment section below? Okay, great. Yes, so please take a screenshot of these points, guys, as they will be helping you all in getting the things very clear and getting understood, like getting the whole knowledge. Diplomats का भेजना क्यों important है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? डिप्लोमैट्स का भेजना क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है. मतलब ये क्यों भेजे इन्होंने, इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना. राइट? ओके. ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस क्लास. राइट? यस. ओके. हाँ, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर जो हम समझ सकते हैं, दैट डिप्लोमैट्स आए, पर क्या इस डिप्लोमैट्स के थ्रू कोई ऑर्डर आया? तो बिल्कुल ऑर्डर आया सब्जुकेशन का. यस, ऑर्डर आया आपके सब्जुकेशन का कि अब आप फटाफट से क्या कर दो, अपने आप को सब्जुकेट कर दो. नाउ द किंग और द एम्परर will be looking after your provinces, will be looking after what you are going to do, and will be taking good care of your empire, and now you will be just the representative of this empire in the Mughal court. Rest nothing. The actions and the decisions will be taken up by the king and the emperor only in your regard and in your respect. Right? Now let's take this class ahead and understand everything in detail. तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास में आती है आफ्टर दी आपके डिप्लोमैट्स, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो क्या आती है यहाँ पे? दैट्स दी बैटल विच वॉज फॉट. अब डिप्लोमैट भेज दिए सब्जुकेशन के लिए, मना ही कर दिया महाराणा प्रताप ने, कहा नहीं कर रहा, क्या करोगे? तो अब नहीं कर रहा और क्या करोगे? तो फिर अब तो बैटल होगा, फिर तो क्या होगा? युद्ध होगा. तो हुआ भैया आपका हल्दी घाटी का महायुद्ध, यहाँ हम कहेंगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी, between Akbar and Maharana Pratap armies on 18th of June 1576. Very important.
as has been direct questions asking the year and date of Battle of Haldighati. डायरेक्ट सीधा बैटल ऑफ हल्दीघाटी पूछा एग्जाम में, सीधा, बिना किसी ट्विस्ट के। डेट क्या थी, साल क्या था, सन क्या था, सिर्फ ये पूछा है, सन क्या था, तिथि क्या थी, डेट क्या था, बस यही पूछा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसी चीज ना हम इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कौन पूछेगा, ये पूछ लिया भैया, पूछ लिया, आ चुका एग्जाम में। द कमांडर ऑफ अकबर्स आर्मी वाज इन कमांडरशिप ऑफ द अकबर्स आर्मी वाज इन द हैंड्स ऑफ प्रिंस मानसिंह एंड असफ खान। So we can just focus over here that Prince Mansingh was targeted and Asaf Khan was targeted with respect to what? With respect to the commanding of this particular army, which was the Mughal army, right? Now with reference from the Pratap's army, तो प्रताप की आर्मी भी ढीली तो नहीं होगी अकबर के अगेंस्ट में, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट थी। तो पहले इंसान जो होते हैं वो होते हैं कृष्णदास चुंडावत जी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर हम प्रताप और बैटल की बात करेंगे तो हमें एक चीज बहुत क्लियर होगी, दैट कृष्णदास चुंडावत वाज द पर्सन हु प्लेड अ रोल इन द कोरोनेशन, इन द प्रोटेक्शन एंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ दिस पर्सन प्रताप। अब गाइस एक चीज याद रखो, यहां लिखा हुआ है सरनेम चुंडावत, सालुंबर से हैं। अंडरस्टूड सी चीज है कि प्रताप की आर्मी की कमांडरशिप कौन करेगा, सालुंबर का फ्यूडल लॉर्ड करेगा, जो कि हर साल बार बार चेंज होते रहते हैं। अगर हम राज सिंह जी के टाइम पे बात करें, मेवाड़ वाले, तो उनके टाइम पे रतन सिंह आ गए थे, रतन सिंह चुंडावत ऑफ सालुंबर। फिर अब कौन आ गए थे, कृष्णदास चुंडावत ऑफ सालुंबर। तो ये चीफ ऑफ आर्मी तो चेंज होगा ही, जैसे जैसे आपके राजा चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे ये भी तो चेंज होंगे। ऐसा तो नहीं सकता वो 60 साल 70 साल जिएंगे और ये 10 साल ही जिएंगे। तो टाइम पीरियड तो दोनों का सेम ही होगा, राजा के साथ ही राजा चेंज होता है, फ्यूडल लॉर्ड भी उसी टाइम पे चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजा राम सिंह जी ग्वालियर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। देन दी हकीम खान सुरी एंड दी पूंजा भील। तो पूंजा भील की भी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, दैट द भील्स वर आल्सो इन द सपोर्ट ऑफ महाराणा प्रताप। हकीम खान सुरी वाज अ इस्लामिक रूलर, वाज आल्सो इन द सपोर्ट ऑफ Maharana Pratap, and the persons of the Hinduism were also on the support of Maharana Pratap, because Maharana Pratap never created anything which created discrimination based on the caste, based on the gender, based on the religion. उन्होंने हमेशा क्या प्रोपोगेट किया, इक्वालिटी। क्या प्रोपोगेट किया महाराणा प्रताप ने, हमेशा इक्वालिटी। So any of the concerning points were with respect to the equality and the provisions of equality. Nothing else was taken into account. Nothing else was taken into consideration even. Just one thing was propagated, that was equality. No discriminatory things based on religion, no discriminatory thing being based on the caste and any other thing. तो इन चारों ने लड़ाई की आपके प्रताप के एंड पे। तो प्रताप की आर्मी के कमांडर्स ये सब थे, अकबर की आर्मी के कमांडर आपके कौन से हो गए, असफ खान और मान सिंह जी। ठीक है, चलो भैया बैटल हो गया, अच्छा खासा बैटल चल रहा है, बिल्कुल ऐसा है कि पीक उस पे बैटल चल रहा है, बहुत अच्छे से लोग लड़ रहे हैं, काफी सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है, विजिबिलिटी हमारी आ रही है, और भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को पता चल रही है कि महाराणा प्रताप की लेगेसी में कोई कमी तो नहीं है ना। भले ही आप एक चीज इसमें समझ सकते हो, देखो अकबर के कंपैरिजन में महाराणा प्रताप की जो माइट है वो माइट ज्यादा है, आर्मी अकबर के पास ज्यादा थी। तो ये भी चीज याद रखना, आर्मी कम थी इनके पास में कंपैरेटिवली अकबर से, लेकिन ये डरे नहीं, इन्होंने रेजिस्ट किया उस फाइट को, तो वो भी एक सराहनीय चीज है, राइट। Coming to the next point that states that this was a battle between Akbar's army and Pratap. ये लाइन क्यों लिखी गई है, अकबर्स आर्मी एंड प्रताप, ये लाइन क्यों लिखी गई है, क्योंकि प्रताप खुद बैटलफील्ड में थे और अकबर बैटलफील्ड में नहीं थे। प्रताप खुद बैटलफील्ड में उतरे थे और उन्होंने लड़ाई की थी, और अकबर खुद नहीं उतरे थे बैटलफील्ड में, वो सिर्फ कमांडरशिप दे रहे थे, राइट। अबुल फजल्स इन हिज book Akbarnama gives us the detailed account of what happened in the Battle of Haldighati, to be very exact. अबुल फजल की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी बुक, इनकी बुक थी अकबरनामा, उनके अंदर इन्होंने अकबर के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी थी। उसके अंदर इन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी का भी डिस्क्रिप्शन या डिपिक्शन दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसके आई विटनेस कौन थे, किसने इस बैटल ऑफ हल्दी घाटी को आई विटनेस फॉर्म में देखा है और किसने इसको अच्छे से समझा है।
पूरा बताऊंगी, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। महाराणा प्रताप को आज पूरा इसी क्लास के अंदर खत्म कर देंगे, ठीक है? Yes. Whenever we talk about Pratap, Pratap's legacy is being discussed and being, like I would say, appreciated to now, even nowadays, to every corner of India. महाराणा प्रताप का नाम तो काफी जगहों पे लिया जाता है, इवन महाराष्ट्र में, आपके मध्य प्रदेश में। चलो, इतना क्लियर है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 18 जून 1576, 1576 we are talking about the date, right? Right? You need to keep the date down too. मैंने बताया डेट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, so you need to not get confused and get 1 mark by giving the right answer. Right? If you remember this date, it will be giving you directly 1 mark or 2 marks in the question paper, which are very, very important when it's about the cutoff, when it's about the merit list and everything. Right? So when we talk about the commander of the Akbar's army, there are two names, that's Prince Man Singh Ji and the Asaf Khan. And when we talk about the Pratap's army, then we should note down that Krishnadas Chundawat was there, then Raja Ram Singh was there from the Gwalior's end, then Hasan Khan was there, Hakim Khan was there with the Islamic version, and the Punjab Bhil was there, who was representing the Bhil tribes. Right? So these were the people who were associated with the involvement and the support, providing support to the Maharana Pratap. Right? When we take this ahead, guys, that we should know that Akbar's army and Pratap's army took this battle ahead, and Pratap took this battle ahead on the base of Pratap's army, right? And Abul's Fazl Akbarnama gives us the detailed account of this particular incidents of the Battle of Haldighati. So if you want to know more about the Battle of Haldighati, you can just give it a read. Later, we would see that in the middle of the battle, when the battle was going on, Chetak, who was the horse of Maharana Pratap, felt injured. And that was the reason why Maharana Pratap has to leave the war in the middle. Maharana Pratap बीच में वो war जो है चेतक के चक्कर में छोड़कर और बाहर आ जाते हैं. And one thing to be noted over here, from this particular incident, Jhala Man Singh Ji was the one who led the battle ahead. ठीक है? जैसे हम देखते हैं आपके जब हम सांगा की बात करते हैं, बैटल ऑफ खानवा जब हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं वहां पे जब आपके सांगा इंजर्ड हो जाते हैं तो झाला अज्जा वो आपके बैटल को आगे लेकर जाते हैं, और जब हम यहाँ पे देखेंगे तो झाला मान सिंह जी आपके प्रताप के रेफरेंस में बैटल को आगे लेके जाते हैं. तो कोई ना कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होता है जो अपने बैटल को आगे कैरी फॉरवर्ड करता रहता है, कमांड करता रहता है. नाउ कम्स दैट देयर वर रूमर्स स्प्रेडेड बाय एन सोल्जर. एक सोल्जर आपके कुछ रूमर्स स्प्रेड करता है विच स्टेट्स दैट अकबर इज नाउ कमिंग टू द बैटलफील्ड, which provoked the Maharana Pratap to stay in the battle only. वो बोलते ठीक है अकबर आ रहा तो मैं यही रुकूंगा, जबकि ये क्या था, ये रूमर था, सच्चाई तो थी नहीं. Who would say that Akbar is coming to the battlefield and I won't be like leaving the battle now? Who would accept the fact that in the middle of the battle? But Maharana Pratap, he was very decent, so he accepted the saying. And मान सिंह वॉज नॉट सब्जुकेटेड. अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, फिर भी वो चेतक की जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं. मान सिंह और असफ खान ये बहुत ही डिसप्लीजिंग उसके साथ में, दैट दे वर नॉट एबल टू कैप्चर द पर्टिकुलर थिंग. राइट? क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? कोई भी चीज आप कैप्चर नहीं कर पाते हो तो, और सब्जेक्ट नहीं कर पाते हो, तो अभी तो ये नेचुरल सी चीज थी, कैसे कोई सब्जुकेट कर लेगा? नहीं हुआ सब्जुकेशन. अब एक चीज फॉर श्योर वेरी क्लियर थी, क्या चीज? सब्जुकेशन का इम्पैक्ट बाकी सब पे भी आएगा. सो दिस वाज दैट मान सिंह वाज नॉट सक्सेसफुल इन दी सब्जुकेटिंग प्रताप, एंड सो अकबर वाज डिस्प्लीज्ड बाय हिम एंड असफ खान. So Akbar was not very happy with Asaf Khan and Man Singh's coordination, or we would say the Man Singh's and Asaf Khan's contribution and their coordination and their support to each other. They were not happy. He was not very happy, and he was just of the viewpoint that it should all get stopped. Right? Now when we take this class ahead and understand it in very detail, there were different names which were given to the Battle of Haldighati by different scholars and by different persons. So what were the names that were given to given by different persons with reference to the Battle of Haldighati? So we would see over here, Battle of Khamnor was one name. Battle of Gogunda was one name. So Abul Fazl named is at Battle of Khamnor. Abdul Qadir Badayuni Sahab named is at the Battle of Gogunda. James Todd referred to this as the Thermopylae of Mewar. So there have been names given by Colonel James Todd, and along with him in many other colonels too, stating that there have been the difficulty in the name, the Thermopylae of Mewar, reference of another war that was led on the foreign basis.
तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी. What we need to do, we need to just remind these things off in our mind and then pursue anything that we are doing. Right? Is this much clear? So, is this particular things that were associated with the Battle of Haldighati clear to you? Who are involved in the Battle of Haldighati and what were the other names that were given to him? During the Battle of Haldighati क्या-क्या other names दिए गए, सब clear है? चलो, तो फिर बाकी की चीजें देख लेते हैं एक बार फटाफट से. ठीक है, एक बार के लिए बाकी की चीजें देख लेते हैं. नेक्स्ट कम्स दी अब्दुल कादिर बदायूनी साहब. अब्दुल कादिर बदायूनी साहब जिन्होंने इसको नाम दिया आपका बैटल ऑफ गोगुंडा. ठीक है, वो पिक्चर में आते हैं. अब वो पिक्चर में आए तो उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई. ये पिक्चर क्या आ गया यहाँ पे, दैट दी मुंतखाब उल तवारिक, मुंतखाब उल तवारिक was an eyewitness account given by the Abul Qadir Badayuni Sahab. And when we talk about the Battle of Haldighati, it is the only eyewitness thing that is available to us. अब्दुल कादिर बदायूनी साहब के द्वारा रचित आपकी मुंतखाब उल तवारिफ एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आपको बैटल ऑफ हल्दीघाटी के सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे. राइट? क्या इतना क्लियर है? हाँ जी. Is this much clear? Can I get a thumbs up in the comment section stating that it's very clear to you? Cool. Now, why was the Battle of Haldighati important? Very simple question, guys. ठीक है, लड़ लिया, युद्ध हो गया, एक हार गया, एक जीत गया. जरूरी क्या था? मम्मी नहीं बोलती क्या जरूरत थी एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की, क्या जरूरत थी लड़ने की, सब रखा तो है ना? तो भैया नहीं, ये चीज भी इंपॉर्टेंट थी. बैटल ऑफ हल्दीघाटी इंपॉर्टेंट क्यों थी? So let's give it a think that this is to be noted that the battle signified the imperialistic forces against the regional independence. अब महाराणा प्रताप भैया वो एक छोटे से अपने एरिया से ना किसी से जिद करते ना बहस करते, अपने पीसफुली रहते, शांति से रहते. उससे अगर हम बात करें अननेसेसरी अकबर ने पंगे लिए, which is a bad thing. This should not be done. This should not be even taken care of, right? So we can note over here that these were the provisions which somehow imposed you towards someone in a negative manner. So अब important क्यों था? सबसे पहले तो रीजनल और इम्पोर्टेंस आपके अगर हम बात करें इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस, मुगल पूरा एम्पायर है, पूरा दरबार है. और अगर हम इसकी बात करें रीजनल पर्पसेस से, तो रीजनल पर्पसेस से ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है. चलिए, now let's understand the token of respect on ethics generated by the प्रताप. तो प्रताप का ये इंसिडेंस देख के लोगों ने अपने मन में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ही ज्यादा अप्रेजल जो है एक्सेप्ट कर लिया था. Later, the regional pride and honor was also developed after this particular battle. So we would see that after this particular battle was whenever it was concluded or culminated, then what happened? Regional pride and honor was also developed that so and so. अब जैसे आपके गांव से कोई IAS ऑफिसर बन गया, हमारा बेटा है, हमारे गांव का बेटा है, ऐसे करते हैं ना, तो रीजनल प्राइड भी डेवलप हो गई थी इस पर्टिकुलर बैटल के बाद में. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था बैटल ऑफ हल्दीघाटी. मतलब अगर मैं बताऊं आपको 2-3 और बैटल्स हैं, लेकिन बैटल ऑफ हल्दीघाटी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कम्स द कुंभलगढ़ बैटल. So now the Shahbaz Khan, who attacked the fort of Kumbhalgarh consecutively 3 times in 15, 77, 78 and 79 to capture the Maharana Pratap, but he failed in the same. So later and again 1580 Akbar appoints the Abdur Rahim Khane Khan as the commander of the Mughal army, and he too failed in that particular task. तो मैम अकबर किसी के हाथ नहीं आते थे सलीके से. Yes. Any other thing that you would like to add to it? Yes. I would reread this point again, that Abdul Rahim Khane Khan, right? He was the person who was appointed to look after the commanding ship of Mughal army versus Sanga, right?
Now when we talk about Maharana Sangha, we need to take care of a lot of things in detail. Why was his surveillance important? Why he didn't fail in this battle? What was so difficult about the time period 76 and 88 and 90s? मतलब अगर बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ तो इससे एसोसिएटेड चीज क्या हो गई 77, 78 एंड 79? क्या इंपॉर्टेंट चीज हो गई? तो ये ईयर्स पूछ सकता है आपसे कि आपके कौन कौन से ईयर्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, राइट? Now when we talk about, he was not financially very much sane at this moment, right? So he took or maybe we can say that he asked for the help from some persons and then he was helped, right? We provided the help too, and we can see that the Bhamasha, he was his minister, who was giving him the Chulia village along with the cash and everything. तो अभी अगर हमको एक चीज पता चलती है कि उनके उसमें पैसे वैसे नहीं थे, तो इन्हें लगता है कि यार अब मैं क्या करूंगा, पैसे ही नहीं है, वॉर कैसे लड़ूंगा, घर कैसे चलेगा, तो क्या कहते हैं कि ठीक है आपके जो वाइफ है उनके कपड़े तो लाइक मतलब बेसिक चीजें बता दें, बेसिक एमिनिटीज हम पूरी कर देंगे, और अगर हम बात करें फाइनेंशियल असिस्टेंस की तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. सो दिस Bhamasha provides the financial assistance to these persons, right? Now when we take a back, Bhamasha is also called the Danveer and the Udharak of Mewar. तो even today we refer to जब भी हम बानवीर की बात करते हैं तो इसे उधारक ऑफ मेवाड़ भी कहते हैं. दैट ही हैज टेकन something very very precious which cannot be returned, which cannot be even taken humble care of, right? Is this much clear? Yes. Okay. Now when we talk about the titles, याद रखना उधारक और मेवाड़ and दानवीर can be asked in the examination. The Battle of Diver. Now why is the Battle of Diver important? Battle of कुंभलगढ़ बता दिया, Battle of हल्दीघाटी बता दिया, दिवेर क्यों important है बताओ? दिवेर क्यों important है? Why is the Battle of Diver important? Because Colonel Jail Stodd named this particular battle as the Marathon of Mewar, and we would see that in 1582 this particular battle was fought. Later we would see that Amar Singh, who killed the Mughal Sultan, who was the commander, Sultan Khan, in the particular army, it was a particular battle which turned into the Mughals and that of the Mewadis. Later we would see that the Pratap was supported by Pratapgarh, Idar and the Banswara in the Battle of Diver. So all these regions combined and came together to help the Maharana Pratap. Right? Is this much clear? Is this much clear, guys? Okay. So this should be noted that who all supported, क्योंकि इसके ऊपर भी आपका क्या आ सकता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है. प्रतापगढ़, इदार और बांसवाड़ा, PIB. प्रतापगढ़, इदार और बांसवाड़ा, इन तीनों ने मिलकर इनको सपोर्ट किया था. अगर हम बात करें then later on in this 1586 AD, this particular attack on Mewar by Jagannath Kachawa of Amer, which was considered to be the last attack, right? Yes, this attack was declared as the last attack which was done by the Mughal forces. Like when we talk about this particular attack was there on the Mughal forces, तो ये क्या last attack माना जाता है. ठीक है, अब इसके बाद में कोई attack नहीं. Pratap, after conquering Mewar, captured the Chawand and made it his capital. तो प्रताप ने क्या किया, सबसे पहले छावंड को जो है कैपिटल बना लिया. Now when he made the Chawand capital, the Sahara, or we could say the particular peaceful environment, could only be created by this. Later, if we take this class ahead, we would say that goddess Chamunda, she belonged to the Chawand region. तो जब इन्होंने छावंड में अपनी कैपिटल चेंज कर ली, तो इन्होंने क्या करा, आपके चामुंडा का टेम्पल भी आपके छावंड में लाके रख लिया. राइट? चामुंडा का टेम्पल भी अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने छावंड में इंस्टॉल कराना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी नई कैपिटल बन गई थी. नई कैपिटल रेफरेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके. राइट? ठीक है. Now one more thing, guys, the battles were one on the one side, the development of the art and culture also took place in this particular era.
किस चीज का डेवलपमेंट हुआ आर्ट एंड कल्चर में? स्कूल ऑफ पेंटिंग का. Now we would see the school of painting was also developed. The school of Mewar painting was started in this particular reign only. And Nasruddin was considered to be the court painter of this particular Pratap. क्योंकि देखो पेंटिंग एसोसिएटेड चीजें हैं तो एग्जाम में पूछेगा ही कि पेंटर कौन था इंपॉर्टेंट, तो वो नसीरुद्दीन था. राइट? इज दिस मच क्लियर? इज दिस मच क्लियर? यस गाइस, कोरोनेशन हो गया, बैटल ऑफ हल्दी घाटी हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, दिव्यार हो गया, आपकी छोटी मोटी और चीजें हो गई, साथ में सब कुछ हो गया. एक चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है कोर्ट स्कॉलर्स ऑफ महाराणा प्रताप. सो हु वर कंसिडर्ड टू बी द कोर्ट स्कॉलर्स ऑफ महाराणा प्रताप? द फर्स्ट कम्स दी हेमरत्न सूरी, जिन्होंने क्या लिखी? रतन सिंह के टाइम पे जो आपकी गोरा बादलरी चौपाई हुई थी वो चौपाई लिखी. हेमरत्न सूरी ने जो गोरा बादल का इंसिडेंस हुआ था, दैट चौपाई, पर्टिकुलर चौपाई, उसे लिखा आपका. राइट? नेक्स्ट इज सादुल्ला त्रिवेदी. Now when we talk about the person who is associated with all these things, then he was offered with the territory of the Mandir. अब ऐसे कैसे आ गया? तो ये भी important चीज है. Bhamasha was the prime minister of this particular provinces. Then Chakrapani Mishra, he also wrote these 3 books which were very important. That was the Rajyabhishek, Vishwavallabh and the Mahuratmala. They were also associated with the development of the Pratap's legacy only. मतलब बेसिकली हम देख सकते हैं कि प्रताप के एरा का ही काम यहाँ पर हम टारगेट करेंगे. जो काम उनके रिस्पेक्ट में, उनके पर्सपेक्टिव से हो जाता है, उसी को हमें यहाँ पर फेवर और टारगेट करना है. नेक्स्ट, ताराचंद, he was the brother of भामाशाह. अच्छा सुनो एक चीज, जब बैटल ऑफ हल्दी घाटी हो रहा था, प्रताप के पास में फंड्स नहीं थे, तो भामाशाह ने मदद करी. अब हमें पिक्चरों में सिर्फ यही पता चलता है कि भामाशाह ने मदद करी, नहीं, ताराचंद ने भी की थी. He was the brother of भामाशाह who assisted financially to whom? To the Maharana Pratap. Last, the Mal Sandhu and the Ran Sandhu, they were the poets in the court of Maharana Pratap. तो poets के रेफरेंसेस में आपने देख लिया, सब आ गए. ऑथर आ गया, पेंटर आ गया, म्यूजिशियन आ गया, आपका डोनर आ गया. डोनर में आप याद कर लो नाम, none other than the ताराचंद and the ताराचंद, और कौन हो गए? भामाशाह. माल सल्दू, रण संधू, पोएट्स हो गए. देन दी चक्रपाणी मिश्र, अगेन इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ये बुक्स लिखी हैं, राज्याभिषेक, विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला. सादुल्ला त्रिवेदी, जिनको टेरिटरी ऑफ मंडेर गिफ्ट दे दिया गया था बाय द रूलर, ही वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रोमिनेंट. सो ये सारी चीजें आपको ये बताती हैं कि किस तरह से आपके महाराणा प्रताप इंपॉर्टेंट थे. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द लेगेसी दैट वाज एसोसिएटेड विद महाराणा प्रताप, What was his legacy, guys? इनकी जो legacy है वो क्या थी, ये बताओ जरा. He died on the 19th of January 1597. A cenotaph or chhatri was also built in the Bandoli, Udaipur of 8 pillars. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? 8 pillars, 8 खंभों की छतरी की बात हो रही है. Later we would see the चेतक cenotaph, क्योंकि बैटल ऑफ हल्दी घाटी के टाइम पे चेतक इंजर्ड हो जाते हैं, तो थोड़े दिन बाद में उनकी डेथ हो जाती है. राइट? सो दिस cenotaph ऑफ चेतक, एज ही वाज अ वेरी 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 ग्रेट पर्सन. अमर काव्य के अंदर भी आपके शक्ति सिंह और चेतक के बारे में लिखा हुआ है. तो चेतक की बात करें तो his cenotaph was also built in the बलिहा region of हल्दी घाटी. So that was also very important and a very nice fact which you can note down. Now we could see the military policy of Pratap. Guys, whenever we talk about the military things and military policies associated with Maharana Pratap, so they were very important though, but not of this context. ठीक है, इतनी भी ज्यादा important नहीं थी. तो military policy, when we have to understand, we would see that the safety and the security was his major concern. तो ये तो सबका ही होता है. He settled in the hilly region and destroyed the eastern plain. इन्हें क्या लगता था कि प्लेन्स से ज्यादा लोग हिली रीजन्स पर सेफ रहते हैं, क्योंकि कोई भी अटैक प्लेन्स पर बहुत इजी होता है और हिली रीजन पर वो अटैक थोड़ा सा आपका क्या हो जाता है, डगमगा जाता है, एक तरह से डिस्टर्बिंग अटैक हो जाता है. राइट? Then also we would see that the guerrilla warfare techniques was used against the Mughals. So this was also a very factual thing which you can note down. And the guerrilla warfare techniques were of great importance, right? Then we would also see that the other things was that Bhil also supported him in the armies that he was fighting. पूंजा भील का रेफरेंस हमने देख ही लिया. जब वो ही खड़ा हो गया था तो बाकी सारी चीजें तो खड़ी होनी ही थी, है ना. चलो नेक्स्ट,
सोशल इन्फ्लुएंस ऑफ महाराणा प्रताप। गाइस देखो एक चीज समझना, मैंने आपको अभी भी बताया, पूंजा भील के बारे में बताया है ना, हकीम खान सूरी के बारे में बताया, और इसी के साथ साथ में मैंने आपको कृष्णदास चुंडावत के बारे में बताया। तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई, भले ही वो ब्राह्मण हो, चाहे भील हो, चाहे कोई और हो, चाहे मुसलमान हो, आपके समाज का हर कतरे ने इनकी मदद करी। So every strata and every section of the society have helped and favored Maharana Pratap in establishing the social influence. No discrimination policy, that no discrimination was done on base of anything. No religion discrimination, no caste, no creed, no gender, no color, nothing. No discrimination was propagated by him. The presence of rulers in his coronation, who was he? Chandrasen. चंद्रसेन इनके सेकंड कोरोनेशन में प्रेजेंट थे। तो वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इनकी सिर्फ खुद के लोगों के साथ ही नहीं, इनकी बाकी एम्पायर के लोगों के साथ में भी जो दोस्ती थी, जो रिलेशनशिप थी, वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ थी, राइट। सो द प्रेजेंट ऑफ द अदर रूलर्स इन हिज कोरोनेशन रिफ्लेक्टेड हिज रिलेशनशिप विद देम, व्हिच वाज अ वेरी पायस एंड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अब आता है दिमाग वाला खेल, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, तो ये एक मान लो कि ये आपके लिए एक एक्टिविटी हो गई है, ये एक आपके लिए एक्टिविटी है। सो दिस इज द एक्टिविटी थ्रू विच यू विल बी टेलिंग मी दैट व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन इन द लिटरेचर सेक्टर गिवन बाय प्रताप, आर्ट सेक्टर, आर्किटेक्चर सेक्टर। इन सब के अंदर जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो फटाफट से आप जरा कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइए, क्योंकि ये सबसे मेजर चीज है। यस गाइस, यस, कोई भी चीज जो भी आपको पता हो आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर से एसोसिएटेड, यस बताइए। देखो अब हम लिटरेचर की बात करें तो हमने इनके कोर्ट स्कॉलर्स देख लिए, हमें पता है गोरा बादल री चौपाई इन्हीं के टाइम पे लिखी गई थी, तो ये मार्क कर लो, ठीक है। बहुत ही ग्रेट एपिक है ये, तो चलेगा, इससे भी काम बन जाएगा। आर्ट, वी हैव सीन नसीरुद्दीन as a court scholar who was a great painter, और जिसकी इन्फ्लुएंस से we would see that the Mewar school of painting was also developed. Now when we talk about the architecture sector guys, architecture में भी अच्छी चीज है। एक तो काफी सारे नॉर्मल चीजें तो इन्होंने बताई, एक हम कह सकते हैं चामुंडा माता टेम्पल एट छावंड, चामुंडा टेम्पल एट छावंड। तो छावंड के अंदर जो चामुंडा माता टेम्पल है उसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही ज्यादा पायस और इंपॉर्टेंट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू महाराणा प्रताप्स आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन। नाउ देयर हैव बीन दीज varied contribution which he had made, so you just need to do what, you just need to recall what you have understood in the previous classes। अब ये तीनों आंसर आपके क्लास से आए, गोरा बादल चौपाई लिटरेचर, आर्ट आपका नसीरुद्दीन और मैंने बताया था मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में, और आर्किटेक्चर में आपका मैंने सिंपल सी चीज लिखी छावंड माता या चामुंडा माता टेम्पल। बहुत अच्छी चीज है, इन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया छावंड में तो उन्होंने चामुंडा माता को अपना जो है इंस्टॉलेशन कराया उनके टेम्पल का आइडल का, और चामुंडा माता टेम्पल डिक्लेयर कर दिया उस टेम्पल को। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी। क्या इतना क्लियर है बच्चों को सबको? क्या इतना क्लियर है? तब तो फिर एक बार फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं और महाराणा प्रताप की लेगेसी को कंटिन्यू रखते हैं हमारी सारी ही क्लासेस और आजीवन हमारी जिंदगी में, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं एक बार फटाफट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है इनके रेफरेंसेस में। महाराणा प्रताप रेन पीरियड 1572 टू 1597 ऑफ द मेवाड़ का रूल किया इन्होंने, मेवाड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, निकनेम सन, वाइफ, मदर, फादर, पर्सनल लाइफ पूरी बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट। पापा का नाम उदय सिंह, मदर का नाम जयवंताबाई, वाइफ का नाम अजबदे पवार, निकनेम कीका, सन अमर सिंह। उदय सिंह वाज दी उदयपुर वन वाला उदय सिंह। लेटर द कोरोनेशन, कोरोनेशन भी दो हुए साहब के, फर्स्ट कोरोनेशन एट गोगुंडा, सेकंड कोरोनेशन एट कुंभलगढ़। चंद्रसेन of Marwar was also present in the second coronation, and Krishnadas Chundawat, who was the chief of army of the feudal lord of Salumbar, was also present in the first coronation ceremony, which was done right after the death of the his father Uday Singh, right?
अकबर और प्रताप की बात मैंने आपको बताई कि अकबर आपके मेवाड़ वाले रीजन को कॉन्कर करना चाहते थे, प्रताप तो क्विट करने वालों में से थे ही नहीं। तो अकबर ने अपने कोर्ट में के 4 डिप्लोमैट्स को महाराणा प्रताप के कोर्ट में भेज दिया। कौन कौन आए भैया? जलाल खान खोची आए, आमेर के प्रिंस मान सिंह आए, प्रिंस भगवंत दास आए और तोडरमल साहब आए। इन चारों का सीक्वेंस याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। जब ये आ गए, इनका स्टैब्लिशमेंट हमें देखने को मिला, तो एक चीज हमें बहुत क्लियर हो गई। क्या देखने को मिला हमें? कि ये आए तो भैया किसी ना किसी एम से थे, और वो एम क्या था? सब्जुगेशन। वो एम क्या था? कि इन्हें टेरिटरी सब्जुगेट करनी है, इन्हें बेसिकली इस पूरे एम्पायर पर कब्जा करना है, राइट? नाउ व्हेन ही टारगेटेड इन द सब्जुगेटिंग थिंग एंड Pratap, Maharana Pratap refused to subjugate himself. He waged a war. Then started the Battle of Haldighati on 18th of June 1576. Commander of the Akbar's army was Prince Man Singh and Asaf Khan. And Pratap's army was headed by none other than Krishnadas Shundawat, Raja Ram Singh ji. He was from Gwalior, Hakim Khan ji and Punjab Bhil. Very important. If we take this ahead and understand the battle which was between the Akbar's army and Maharana Pratap, because Akbar was not in the battlefield. Instead, Maharana Pratap was there in the battlefield, right? So it was Akbar's army and Maharana Pratap. Akbarnama, which is written by Abul Fazls, it states that each and every detail of Battle of Haldighati, which was fought between these two personalities. Next comes, in the middle of the battle, when we see and observe, then Chetak, who was Maharana Pratap's horse, he got injured. And then Jhala Man Singh ji led the further battle. Due to the injury, Maharana Pratap has to leave the battlefield. And when he left the battlefield, then Jhala Man Singh on Maharana Pratap's behalf led the whole battle. One thing also we would note that Akbar coming in the battlefield, there was a rumor spreaded by a soldier. एक soldier ने एक rumor spread कर दिया that Akbar is coming in the battlefield and all the rulers who are playing their martial role will be now killed. They won't be taking anything. तो ये रूमर बड़ा जल्दी से स्प्रेड हुआ, कोई इफेक्ट ऐसा कुछ आया नहीं, डिसअपॉइंटमेंट ही हुआ क्योंकि अकबर आया नहीं। मान सिंह और असफ खान, जिसपे आपके अकबर ने बहुत ज्यादा रिलाय किया था, उन्होंने अकबर को क्या किया? खुश नहीं किया। तो मान सिंह और असफ खान दोनों से अकबर जो थे थोड़े से डिसप्लीज्ड थे, दुखी हो गए थे वो, दैट दे वर नॉट एबल टू मेक अकबर हैप्पी बाय सब्जुगेटिंग और बाय विनिंग द बैटल। Later we would see that there were other names of the Battle of Haldighati which were given by Abul Fazl at the Battle of Khamnor, the Abdul Qadir Badayuni Sahab who gave the Battle of Kogunda, Colonel James Todd who gave the title of Thermopalli of Mewar. So these 3 of the titles were very, very important and very, very prominent. Abdul Qadir Badayuni Sahab also said one thing in his book, that was Muntakhab ul Tawarikh. He gave the whole account and whole eyewitness account of this Battle of Haldighati. तो मतलब मैम अबुल फजल की अकबरनामा दोनों पढ़नी चाहिए हमें, उसके साथ साथ हमें बदायूनी साहब की ये मुंतखाब उल तवारिख भी पढ़नी चाहिए, इन दोनों से हमें बैटल ऑफ हल्दीघाटी के बारे में पता चल, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। कभी अगर बैटल ऑफ हल्दीघाटी पढ़ने का मन हो तो दोनों की बुक्स पढ़ लेना, काफी अच्छी सी नॉलेज मिल जाएगी। अब बैटल ऑफ हल्दीघाटी इंपॉर्टेंट क्यों थी? So we need to keep this in mind that this battle signified the imperialistic forces against the regional independence. महाराणा प्रताप रीजनल रूलर होके इंपीरियलिस्टिक फोर्स मुगल से कम्पीट कर रहे थे। मुगल से कम्पीट करना, अकबर से कम्पीट करना वाज इक्विवेलेंट टू एनी अदर वॉर विद द इंपीरियलिस्टिक पावर। Akbar has already conquered a lot of regions, and though Maharana Pratap was fighting with him because he wanted to establish peace, he wanted to not surrender himself. He didn't want to subjugate. Subjugate कर दे तो आज मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होती, बैटल ऑफ हल्दीघाटी होता ही नहीं, पहले ही सरेंडर कर दिया होता उन्होंने। पर नहीं ना, मेवाड़ है, ग्लोरी है, क्यों सरेंडर कर दे भैया? ऐसी हमारा राज्य है, मैं क्यों मेरा घर किसी और को दूं कि तू आके रह? सही बात है, नहीं दिया, और इसीलिए लेगेसी है जो इनकी याद की जाती है। टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एंड एथिक्स जनरेटेड बाय प्रताप। प्रताप ने एक टोकन ऑफ, मतलब एक कह सकते हैं ना कि एक एप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट जनरेट कर दिया लोगों के बीच में कि भैया आप अपने रीजन को कम मत समझो, भले ही हम छोटे हैं लेकिन हम वहां पहुंच सकते हैं और हम वहां लड़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज थी जो हमें महाराणा प्रताप ने इस बैटल से सिखाई। लास्ट चीज आती है, रीजनल प्राइड एंड ऑनर वाज डेवलप्ड आफ्टर दिस पर्टिकुलर बैटल। सो वी वुड सी कि लोगों को अपने रीजन से बहुत प्यार होने लग गया, उन्हें ये लगा कि वो जो कहते हैं ना पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, वो वाली फीलिंग हमारे रीजन को लेकर हमें डेवलप हो गई।
Later we would see the Kumbhalgarh battle, which was again fought by the Shahbaz Khan, who attacked the fort of Kumbhalgarh in 1577, 78 and 79 to capture the Maharana Pratap, but failed again. Later again in 1580, Akbar appointed Abdur Rahim Khan to surrender to this fort. उन्होंने भी वापस से अटैक किया मुगल आर्मी का कमांडर बना के, फिर वो भी हार गए। अच्छा, अब इसमें क्या होता है ना, अब्दुल रहीम खान की बेटियां और वाइफ का किडनैप हो जाता है बाय अमर सिंह। उनको छुड़ाने के लिए महाराणा प्रताप जाते हैं, और जब वो छुड़ा के लाते हैं तो वो ये कहते हैं कि कभी भी कुछ भी करना, ऐसा कोई एक्ट मत करना जो आपको डिमोलिश करे, जो आपको डिग्रेड करे। तो ये एक्शन वो लेते हैं प्रोटेक्शन का। भले ही अब्दुल रहीम खान की अगर हम बात करें, वो उनके दुश्मन होते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के एथिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो उन एथिक्स की ही रक्षा में ये एक्शन लेते हैं। प्रताप अब फाइनेंशियली सेन तो थे नहीं, जो इतना पहले उनके पास में फंड्स थे उतने नहीं थे। तो ये आपके चुलिया गांव के एक भामाशाह, जो कि इनके क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, इनके मिनिस्टर होते हैं, है ना, प्रताप के कोर्ट के अंदर, उनसे फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं। देखो, भामाशाह के साथ साथ में इनके भाई भी इनकी मदद करते हैं, ताराचंद जी, वो भी प्रताप की मदद करते हैं, वो इनके कोर्ट स्कॉलर्स में हम देखेंगे। तो भामाशाह को अगर हम बात करें, मेवाड़ का उद्धारक ऑफ मेवाड़ भी कहा जाता है और दानवीर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप टाइटल भी ध्यान रखना। बैटल ऑफ दिवेर की अगर हम बात करें, इट वाज फॉट इन द ईयर 1582। जेम्स टॉड कॉल्ड दिस पर्टिकुलर बैटल एज द मैराथन ऑफ मेवाड़। अमर सिंह किल्ड द मुगल सुल्तान और द मुगल कमांडर हु Sultan Khan. Mughals versus the Pratap. This was again a great battle. Pratap was supported by Pratapgarh, Idar, Banswara in the Battle of Diver. So all the regions supported Pratap, but still the result was not very well. Attack on the Mewar by Jagannath Kachawa of Amer. This was the last attack by the Mughal rulers on the Mewar province, which was on the 1586 AD. We would see that Pratap, right after the conquering of Mewar, captured the Chhavand and made this Chhavand his capital. छावंड का लोकेशन आपके सामने है, ये प्रसार हिल्स और सहारा हिल्स के बीच में है। तो ये लोकेशन आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। गॉडेस चामुंडा माता टेम्पल वॉज डेवलप्ड इन द छावंड। स्कूल ऑफ मेवाड़ पेंटिंग वॉज स्टार्टेड एंड नसरुद्दीन वॉज द कोर्ट पेंटर ऑफ प्रताप एंड ही वॉज द हेड कोर्ट पेंटर। तो पेंटिंग का जो एरा है वो इनसे ही लिंक होके मेवाड़ में स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ। कोर्ट स्कॉलर्स हेमरत्न सूरी ने गोदा बादल की चौपाई लिखा, ये वो रतन सिंह वाले गोरा बादल है। रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी पद्मनी वाले गोरा बादल हैं। सादुल्ला त्रिवेदी को मंडेर का टेरिटरी दिया गया रूल करने के लिए। भामा शाह वाज द प्राइम मिनिस्टर हु गेव द फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड एड टू द महाराणा प्रताप ड्यूरिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। चक्रपाणी मिश्र ने राज्याभिषेक, विश्ववल्लभ और मुहूर्तमाला, ये 3 किताबें लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ताराचंद who was the brother of Bhama Shah again give the financial assistance to the Maharana Pratap. And then we would see that Mal Sandhu and Ran Sandhu were the poets in the court of Maharana Pratap. Right? Later, if we take this ahead, Pratap's legacy is being noted. 19th of January 1597, he died. He died and his cenotaph was built in the Bandoli, Udaipur with 8 pillars on it. Cenotaph of Chetak is associated with the Baliha region of Haldi Ghati. तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी से रेफरेंस आपके चेतक का ही आता है, बलिहा में उनका सेनोटेफ बना हुआ है। आज भी मतलब हम बात करें, देखो अटैचमेंट की बात है कि हमें जो है हमारे जानवरों से भी बहुत अटैचमेंट है। जो हमारे पेट्स हैं, हम उन्हें बिल्कुल घर की तरह रखते हैं, कि उनका भी सेनोटेफ बनाया गया। तो बहुत ही प्राइड वाली चीज़ है। और हमारे साथ अगर ये ऐसा है ना, मतलब मैं सच्ची बताऊं, अगर एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव दो दैट फीलिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स द एनिमल, दैट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव यू कैन एवर गिव टू एनीवन। बिकॉज जो एनिमल आपको प्यार करता है ना, वो बिना किसी मतलब के करता है, ये याद रखना। आप उसे कुछ नहीं दे सकते, चीर फाड़ करके वो आपको किसी भी दिन खा लेगा, उसका नहीं है कुछ भी, उसको कोई लगाव नहीं है किसी चीज से, वो आपका हाथ भी खा लेगा, उसका तो पेट भर जाएगा। पर वो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव वो हमें देते हैं, वो अगर हमें उन्हें देना है तो हमें भी पहले प्योर उनको फॉर्म देना पड़ेगा लव का, तभी वो अपना प्यार हमें देते हैं। ठीक है, चलो, तो बहुत अच्छी से मतलब ठीक है, फिलोसफिकल भी कर लेनी चाहिए अभी आप कभी कभी। सो फोकस ऑन व्हाट्स गुड फॉर देम एंड व्हाट्स गुड फॉर द सोसाइटी। मिलिट्री पॉलिसी एसोसिएटेड विद द प्रताप वाज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उनका सबसे मेजर कंसर्न ये था कि मेरी प्रजा पूरी सेफ रहनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ईस्टर्न प्लेन से अपने एम्पायर को हिली रीजन में शिफ्ट किया। वो मैंने आपको बता ही दिया था, क्योंकि हिल्स पे चढ़ाई करना मुश्किल होता है, वहां तक आर्मी जब तक आती है हमारे लिए अटैक ईजी होता है ऊपर से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स इनकी यूज करना, वो भी बहुत प्रोमिनेंट रही। गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स इन्होंने भी यूज करी और चंद्रसेन ने भी यूज करी।
दोनों ने यूज करी अपनी अपनी बैटल्स में। भील सपोर्ट वॉज ऑल्सो वेरी पाइवटल इन द आर्मीज। भील्स ने भी प्रताप को बहुत सपोर्ट किया, जिसमें हमने रेफरेंस देख लिया पूंजा भील का, जो आर्मी कमांडर के फॉर्म में सामने आए। सोशल इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रताप, महाराणा प्रताप। सो वी वुड सी दैट एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी फेवर्ड महाराणा प्रताप। हर सोसाइटी ने फेवर किया, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो आपके मुसलमान हो, चाहे वो आपके भील हो, सबने महाराणा प्रताप को फेवर किया। और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनकी पॉलिसी में नहीं था। ना तो मैं रिलीजियस में बायस्ड हूं, ना मैं ये कहता कि तुम भगवान को पूजो, ना अल्लाह को मानो, ना क्रिश्चियन, कुछ नहीं। मेरे को तो सिर्फ वॉर चाहिए। अगर तुम ईमानदार हो, तुम में जज्बा है, तो तुम लड़ो, बस यही बोला इन्होंने। प्रेजेंस ऑफ रूलर्स इन हिज कोरोनेशन रिफ्लेक्टेड हिज रिलेशनशिप विद देम। तो मेवाड़ और मारवाड़ की रिलेशनशिप तो अच्छी थी, हम ये बाद में भी देख सकते हैं जब राज सिंह जी अजीत सिंह जी की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि प्रताप के कोरोनेशन में चंद्रसेन मारवाड़ वाले भी प्रेजेंट थे। तो दैट वाज अ गिफ्ट, गुड रिफ्लेक्शन ऑफ द कोरोनेशन व्हिच टुक प्लेस इन हिज टाइम पीरियड। एंड द लास्ट, दैट लिटरेचर contribution that has played an important role in the art and culture of the art and culture contribution in the literature sector। गोरा बादल चौपाई, राज्य अभिषेक, अभी आपने देख लिया ना, काफी सारे मेंशन हैं। आर्ट में हमने देख लिया नसरुद्दीन के थ्रू आपका मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का डेवलपमेंट। आर्किटेक्चर में हम देख लेंगे छावंड में चामुंडा माता टेम्पल, राइट। अब उम्मीद करती हूं कि महाराणा प्रताप से एसोसिएटेड कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो आपका छूटा होगा। इतनी डिटेल्ड क्लास और इतनी इंटरेस्टिंग क्लास और इतनी फटाफट क्लास आज तक कभी नहीं हुई होगी। क्यों भाई बताओ, हुई है क्या आज तक ऐसी क्लास जिसके अंदर आपको महाराणा प्रताप का A to Z पूरी चीजें पता चल जाएं, एंड दैट टू विद द पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन। हमने सब कुछ देख लिया, महाराणा प्रताप का कल्चरल एस्पेक्ट देख लिया, पॉलिटिकल एस्पेक्ट देख लिया, उनके सारे वॉरफेयर्स देख लिए, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़, दिवेर। इसके बाद में हमने उनकी सोशल लाइफ देख ली कि किस तरह से उन्होंने कोई भी रिलीजन बायस्ड होकर कोई चीज नहीं करी। उन्होंने हर चीज में लोगों को क्या दी, फ्रीडम दी, फ्लेक्सिबिलिटी रखी। वॉरफेयर टेक्निक्स भी उन्होंने ऐसी यूज करी जिसमें लोग खुश रह सके। सो ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ ही हैज फेवर्ड गुड थिंग्स। दैट इज द रीजन व्हाई वी अप्रिशिएट हिज वर्क्स, why we appreciate his living, why we appreciate his glory। तो वो हर एक चीज इंटरकनेक्टेड होती है। So guys, I hope you guys have enjoyed this session, and if you have enjoyed, please do give honest feedback in the comment section. I would be awaiting, I would be waiting for your comments through the this particular after this particular class. I would be watching the comments in the comment section, and if I get whatever comments, I would, trust me, I would be working upon them and will be trying to give you the best. And about the question and answer series which is associated from these topics, so we will be soon bringing up things which will be targeting the topics that we have discussed. That in one class we will be taking up the Mewar questions which we have discussed, like Mewar में हमने राणा सांगा देखा, राज सिंह जी देखे, महाराणा प्रताप देखे, 3 मेजर रूलर्स आपने देखे। तो इन तीनों से एसोसिएटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब हम कर लेंगे। बट आप ये ध्यान रखना, इन तीनों रूलर्स के साथ में हमने और बहुत सारी चीजें देखी है मेवाड़ में। और ये एक चीज मैं आपको बता दूं, महाराणा प्रताप के बाद में मुगल मेवाड़ ट्रीटी हुई थी 1615 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर सिंह के टाइम, इनके बेटे के टाइम पे वो ट्रीटी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मुगल एम्पायर थे आपके जहांगीर, और जहांगीर ने खुर्रम शाहजहां को बेच के वो ट्रीटी कराई थी। तो उसका भी आप रिफ्लेक्शन ध्यान रख लेना, बिल्कुल से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको क्लास में मजा आया हो, चलो ठीक है, पढ़ते रहते हो, बाकी चीजें करते रहते हो, क्लास में मजा आया हो तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि क्या अच्छा था क्या बुरा था। और प्लस सम्यक सिविल सर्विसेज और सम्यक सिविल सर्विसेज इन इंग्लिश, ये 2 यूट्यूब चैनल हैं, इनको सब्सक्राइब करना है। इनको सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि आपको फर्दर क्लास के नोटिफिकेशन मिलेंगे, प्लस आप हमारी क्लासेस में लाइव जुड़ पाओगे। लाइव जुड़ोगे तो हमसे लाइव बात कर पाओगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ऑल्सो वी हैव अ लाइव सेमिनार फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, लाइक इट इज अ फ्री सेमिनार on 31st of July, that's Sunday at 9 AM on Samyak's new building again. So please join that seminar too. So thank you so much. बाकी official details तो आपसे share हो जाएंगी, अभी जो मुझ तक पहुंची है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care. Keep sharing. Keep learning. And see you soon.